السلام علیکم ناظرین، آئیے آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کا الرٹ، ان علاقوں میں گرج چمک، ژالہ باری، بجلی گرنے اور گڑبڑ کی توقع ہے۔ بارش کا انتباہ، تیلگو ریاستوں میں موسم غیر معمولی طور پر تبدیل ہو رہا ہے۔ جہاں صبح سورج کے ساتھ جھلس رہا ہے، شام کو گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ صورتحال مزید چند روز جاری رہنے کا اندیا دیا ہے۔ درجہ حرارت ریکارڈ کریں۔ آندھرا پردیش میں سورج کی شدت میں دن بعدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیلور ضلع میں گڈور میں 45.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو اس سیزن میں سب سے زیادہ ہے۔ پڈویگورلا میں 45.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور ماروکاپورم میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ریاست کے سینکڑوں منڈلوں میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بعض علاقوں میں گرم ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ دھوپ کے درمیان بے وقت بارش، اگرچہ سورج چمک رہا ہے لیکن دوسری طرف اولے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ ترملا اور NTR اضلاع میں ژالہ باری نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ اتر آندھرا سے رائلسیما تک کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہوا کی رفتار 50-60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک رہنے کا امکان ہے۔ اس عجیب موسم کی وجہ کیا ہے؟ اس صورتحال کی وجہ جنوبی کرناٹک سے تامل ناڈو سے خلیج منار تک پھیلی ہوئی سطحی گرد کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کے عدم استحکام اور اوپری تہوں میں بننے والے اینٹی سائیکلون کے اثر سے موسم بدل رہا ہے۔ اس اثر کی وجہ سے گرمی اور بارش ایک ساتھ نظر آ رہی ہے۔ عوام اور کسانوں کے لیے احتیاطی تدابیر: باہر جانا دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک کم کیا جائے۔ گرج چمک کے دوران درختوں اور بجلی کے کھمبوں کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ کاشتکار کھیتوں میں کام کرتے ہوئے موسم کی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں اور فوری طور پر محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ گرم ہواؤں کی وجہ سے تھکاوٹ سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تلنگانہ میں بھی اگلے 3 دنوں تک ایسا ہی موسم رہنے کا امکان ہے۔ اگرچہ سورج کی شدت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، تاہم وقفے سے ہونے والی بارشوں سے ہوا میں نمی بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بعض اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ مجموعی طور پر تیلگو ریاستوں میں آئندہ 3 دنوں تک ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ اس سے چلچلاتی دھوپ سے کچھ راحت ملنے کی امید ہے، تاہم آسمانی بجلی اور ہواؤں کی وجہ سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ ڈیزل کی سپلائی پر مرکز کا بڑا فیصلہ، ٹیرف میں زبردست کمی 1 مئی سے نافذ۔ مرکزی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ اس نے ڈیزل اور ATF کی برآمدات پر اضافی ڈیوٹی کم کر دی ہے۔ یہ کمی 1 مئی سے نافذ کی گئی ہے۔ مرکز نے ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں ملک میں سپلائی بڑھانے کے لیے برآمدات پر ڈیوٹی میں اضافہ کیا تھا، اب اسے کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کے درمیان مرکزی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ اس نے ڈیزل اور ایوییشن ٹربائن فیول ATF کی برآمدات پر ونڈ فال ٹیکس کو کم کر دیا ہے۔ اس نے مقامی طور پر تیار اور بیرون ملک برآمد ہونے والے ڈیزل اور ATF پر اضافی ٹیکس کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ 1 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ 23 فی لیٹر ATF پر اضافی ٹیکس کم کر کے 10 روپے کر دیا گیا ہے۔ 33 فی لیٹر پیٹرول کی برآمدات پر 0 اضافی ٹیکس ہے۔ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ مرکز کا یہ فیصلہ ان خبروں کے تناظر میں موضوع بحث بن گیا ہے کہ ایران اسرائیل کٹنڈوف سے ملک میں ایندھن کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ اس فیصلے سے ایندھن برآمد کرنے والوں کو راحت ملی ہے۔ اب تک ڈیزل پر اضافی ایکسپورٹ ڈیوٹی 55 روپے فی لیٹر تھی، لیکن اب اسے کم کر کے 23 روپے کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل پر ایکسپورٹ ڈیوٹی میں تقریباً 58% کمی کی گئی ہے، جبکہ ATF پر ایکسپورٹ سرچارج اب تک 42 روپے فی لیٹر تھا، اب اسے کم کر کے 33 روپے کر دیا گیا ہے۔ 26 مارچ کو اس نے ڈیزل پر 21.50 روپے فی لیٹر اور ATF پر 29.5 روپے فی لیٹر عائد کیا۔ پھر 11 اپریل کو ہونے والے جائزے میں اسے بڑھا کر 55.5 روپے اور 42 روپے کر دیا گیا۔ اب ایک بار پھر اسے کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس کم ہو جائے گا۔ حکومت نے یہ ٹیکس جنگ کے دوران ایندھن کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لگایا تھا۔ یہ فیصلہ برآمدی کمپنیوں کو قیمتوں میں فرق کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے کیا گیا۔ کشیدہ صورتحال اور بین الاقوامی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مرکز نے پیٹرول اور ڈیزل کی گھریلو سپلائی بڑھانے کے لیے برآمدی محصولات میں اضافہ کیا۔ اب لگتا ہے کہ جنگ تھم گئی ہے، ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے۔ حکومت نے 1 مئی سے اگلے 15 دنوں تک ڈیزل کی برآمدات پر روڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیکس کو 0 پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر موجودہ ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مرکز نے کہا ہے کہ ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی 0 پر برقرار۔ وزیر پون گولیٹی نے حکام سے مئی کے آخر تک تمام 2 BHK مکانات مختص کرنے کو کہا۔ وزیر نے کلکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر نااہل استفادہ کنندگان کو ہٹا دیں اور اس عمل میں مقامی MLEs کو شامل کر کے اہل خاندانوں کو مکانات دوبارہ تقسیم کریں۔
रेवेन्यू और हाउसिंग के वजीर पवनगोलेटी श्री नवासा रेड्डी ने जुमेरात 30 अप्रैल को ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मई के आखिर तक मुस्तफीदीन को तमाम नामुकम्मल 2 BHK मकानात की शनाख्त और मुख्तस करने का काम मुकम्मल करें। साबिका मीदुक और करीम नगर इजला के ओहदेदारों के साथ हाउसिंग कारपोरेशन आउट क्वार्टर्स में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने हिदायत दी कि तामीर के आखिरी मराहिल में मकानात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि नामुकम्मल यूनिट्स के लिए पहले से किए गए अखराजात को एडजस्ट करने के बाद इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की इजाफी माली इमदाद फराहम की जाएगी। वजीर ने कहा कि ऐसे मामलात में जहां ठेकेदार जेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने को तैयार नहीं है, फायदा उठाने वाले ग्रीन चैनल मैकेनिज्म के जरिए जारी करदा फंड्स के साथ तमीरात शुरू कर सकते हैं। अवामी नुमाइंदों ने बिजली, पीने के पानी, निकासी आब और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी और नाअहल मकीनों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। वजीर ने कलेक्टरों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर नाअहल मुस्तहकीन को हटा दें और इस अमल में मकामी MLEs को शामिल करके अहल खानदानों को मकानात दोबारा तकसीम करें। इसके अलावा 2 BHK हाउसिंग कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए 400 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि कुछ फायदा उठाने वाले शहरी मराकज से दूर वाक़े मकानात पर कब्जा करने से गुरेज़ा हैं और उसके बजाय उन्हें किराए पर दे रहे हैं। वजीर ने खबरदार किया कि ऐसे मामलात में मकानात करीबी रहाइश पजीर अहल खानदानों को दोबारा तफवीज़ किए जाएंगे। वजीर ने बिलों की अदायगियों में बेज़ाबितगियों के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि बदउनवानी में मुलव्वस अफराद को मुलाजमत से बरतरफी समेत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गैस सिलेंडर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। 5 रियासतों में इंतखाबी पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद मरकज ने बड़ा झटका दिया। उसने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त इजाफे का ऐलान किया। उसने ऐलान किया कि ये शरहें 1 मई आज से नाफिज अमल होंगी। ताहम बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर पर किया गया है। ताहम 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई है। 993 मरकज ने घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया। उसने कहा है कि LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कहना है कि इससे 33 करोड़ सार्फिन को राहत मिलेगी। बढ़ती हुई शरह के साथ दिल्ली में एक तिजारती सिलेंडर की कीमत 3071 और हैदराबाद में 3095 है। आज से 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपए होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। मगरबी एशियाई जंग तेल के बहरान के पस मंजर में सारिफीन को पहले ही घरेलू और तिजारती सिलेंडर तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। मरकज कहता रहा है कि इस वक्त शरह में कोई इजाफा नहीं होगा। ताहम कियास आराइयां के इंतखाबात के मंजर आम पर आने के बाद शरहें बढ़ सकती हैं। मरकज ने भी उनकी तरदीद की है, लेकिन अब उसने कमर्शियल LPG की शरह में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। क्या इसका बोझ आम लोगों पर है? कमर्शियल गैस सिलेंडर के हवाले से भी सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। चूंकि बलाक में सिलेंडर भी दस्तयाब नहीं थे, इसलिए हॉस्टल और होटल के मुंतजमीन ने शुरू में लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाने और फीसों में इजाफा करने का सहारा लिया। मेनू से कुछ डिशेस काट दी गईं, जबकि कंपनियों ने कुछ कैंटीनें बंद कर दें। कुछ दफातर ने लोगों को घर से खाना लाने का मशवरा दिया। मालूम हुआ है कि एक मौके पर बड़े शहरों में होटल भी बंद हो गए थे। फिर जो बहरान जारी रहा, चाय और टिफिन के नरखों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। इस मौके पर इस बात का इम्कान है कि बढ़ती हुई कीमतों का बोझ बिलवस्ता आम आदमी पर पड़ेगा। मार्च से लेकर अब तक 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों 1 मार्च 28 से 31 रुपए का इजाफा, 7 मार्च 114.5 रुपए का इजाफा, अप्रैल में 196 रुपए से 218 रुपए का इजाफा, 1 मई तक ये 993 रुपए तक पहुंच गई। उसका माशी असर यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रुपए का नुकसान हो रहा है। 380 फी सिलेंडर। उनका कहना है कि मजमूई नुकसान अरबों रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। मई के आखिर तक 40,484 करोड़। आज से नए कवानीन। कुकिंग गैस सार्फिन के लिए अलर्ट। मरकजी वजारत तवानाई की तरफ से लाए गए नए कवायद आज से नाफिज होंगे। मरकज का कहना है कि तवानाई के बहरान के पेश नजर ये फैसले लेने पड़े। वो हैं दोहरी कनेक्शन पर पाबंदी, यानी ऐसे घरानों में जिनके पास LPG और PNB पापेड नेचुरल गैस दोनों हैं, वो अब LPG गैस सिलेंडर LPG के लिए नया कनेक्शन हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उनके पास 2 में से एक होना जरूरी है। चूंकि इस उसूल का ऐलान कुछ दिन पहले किया गया था, बहुत से लोगों ने एक या दूसरा कनेक्शन छोड़ दिया है। आदाद व शुमार बताते हैं कि अब तक 43,000 सारिफीन अपना LPG कनेक्शन छोड़ चुके हैं। इसके अलावा शहरों और कस्बों में दूसरी बार गैस बुकिंग गैप को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। देही इलाकों में इसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। अब सिलेंडर डिलीवरी OTP लाजमी है। मालूम हुआ है कि नीज सार्फिन को मुकम्मल करना होगा। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी का चलती ट्रेन से नीचे फेंके जाने का दिल दहला देने वाला वाकया। उसका ताल्लुक बिहार के जिला किशनगंज से है।
एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है जिसमें 30 साला अलीम दीन को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। ये वाकया 26 अप्रैल को बरेली में पेश आया। एक रेलवे स्टेशन के करीब मिला ठागिरगंज के बावतो अली गांव के रहने वाले मौलाना तौसीफ रजा मजहरी इतवार की रात उत्तर प्रदेश में रेलवे पटरियों के करीब मुर्दा पाए गए। वो पर नाजुक हालत में पाए गए। जहां रेलवे हुक्काम ने इसे हादसा करार दिया, उनके अहल खाना ने इस दावे की तरदीद की और इल्जाम लगाया कि उन्हें सफर के दौरान नामालूम अफराद ने अगवा किया था। शदीद मारपेट और कत्ल। मुतवफ़ी 7 के एक मदरसे में इमाम और उस्ताद था और बरेली में ताजुश्रिया के सालाना उर्स में शिरकत के बाद ट्रेन से घर वापस आ रहा था का वक्त था जब यह वाकया पेश आया। अहलिया तबस्सुम खातून ने वाकयात बयान करते हुए बताया कि 26 अप्रैल की रात उनके शौहर ने ट्रेन से फ़ोन किया और खौफजदा आवाज़ में इसने कहा कि कुछ लोग इसे मार रहे हैं। उसने बताया कि वीडियो कॉल के दौरान उनके शौहर मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन किसी मुसाफिर ने जवाब नहीं दिया। तबस्सुम खातून के मुताबिक हमला आवर इस पर चूर होने का इल्जाम लगा रहे थे। मौलाना ने अपनी किताबें और बैग दिखाते हुए दावा किया कि वो मदरसा में उस्ताद है। उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन पर भी बात की थी। उसने चीख कर मदद के लिए इल्तिजा की लेकिन किसी ने ना सुनी। उसने बताया कि इसने वीडियो कॉल पर मुल्जिम को अपने शौहर को कॉलर से घसीटते और थप्पड़ मारते देखा। वो इसे मार रहे थे और बहुत मार रहे थे। उनका कहना है कि यह कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं है बल्कि एक साजिश का शाखसाना है। इस पर वो अपने शक का इजहार भी करता है। हो सकता है कि उसे अपनी दाढ़ी और टोपी की वजह से नशा दिया गया हो। उन्होंने हादसे के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि अगर वो ट्रेन से गिरते तो उनके जिस्म पर शदीद चोटें आती हुए होंगे जबकि जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात पाए गए। तबस्सुम खातून ने बताया कि वो रात भर अपने शौहर को फ़ोन करती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और अगली सुबह पुलिस अफसर फ़ोन उठाता है। मकतूल के चचा ये भी पूछते हैं कि क्या हमला आवर मारे जा सकते थे। पहल खानदान ने बाकायदा FIR दर्ज नहीं कराई है। कानूनी कार्रवाई की तैयारियां जारी है। दरी असना मकामी और समाजी ग्रुप सख्त सजा पर गैर जानिबदाराना और मुकम्मल रद्द अमल का मुतालबा कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। अपडेट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बता।